शुरू करें, चल भी ओके। तो वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड रेजिस्टिविटी पे दो तीन बातें करेंगे, इस पे छोटी छोटी बातें। रेजिस्टिविटी, so resistivity is always material specific, it has nothing to do with, एक चीज याद रखिए, resistivity has nothing to do with shape, size, ये सब से कुछ लेना देना नहीं है। resistivity depends only upon two things, one is the nature of material, what are you made of, nature of material. For example, if you are silver then you will have a specific resistivity, if you are copper you will have a specific resistivity. वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सब कोई नहीं पूछता है। नेचर ऑफ मटेरियल एंड अनदर थिंग इज टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर, वी जनरली से रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर बिकॉज इफ इंक्रीज द टेम्परेचर बम्बार्डिंग हैपेंस, इलेक्ट्रॉन में बम्बार्डिंग होता है, वो आप 11 12 में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट। देन वी आल्सो सॉ दैट रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स, लाइक से इफ आई से कॉपर, ओके, एंड say silver Ag, then aluminum, these are quite low, which makes them excellent choice for conductors. In fact, the wires that we get in market are either made up of silver wires are used for high end motherboard solderings and all, aluminum and copper. Have you understood? So pure metals, the resistivity is low, which means they are not good resistors, they are excellent conductors, okay? However, if you make an alloy, अगर हम alloys बना देना, alloys की जो resistivity होती है, that is quite high, काफी बढ़ जाता है alloys की resistivity. For example, we have a alloy called magnanin. Magnanin is an alloy which will have copper, it will have nickel, and it has manganese. All three are actually excellent conductors otherwise, okay? But once you mixed all of them and made an alloy, it has very high resistivity. Okay? Similarly, we have one more alloy called constantan. Constantan is an alloy of copper and nickel. High resistivity. Therefore, these are used for making resistors. These are used for making resistors. When you go to the market and you want to buy a resistor, you will see a resistor is something like this. ऐसा रहेगा. That particular wire, ये जो wire है ना, this wire is actually the resistance, which is either this material or this material. Did you understand? Resistors are those materials which have high resistance. So what is the choice for making a resistor? Any substance which has very high resistance. So, and they should also be used in electrical circuits, so temperature भी bear करना चाहिए. So if you take pure metals, these are nothing but pure metals, okay? Pure metals. And however, if you make alloys out of pure metals से alloy बनाइए, तब उनकी resistivity काफी बढ़ जाती है और उससे हम resistors बना सकते हैं। और जो हम बनाते हैं बाजार में, जो रेजिस्टेंसेस खरीदते हैं बड़े सस्ते होते हैं, 1 रुपया का एक, 1.5 रुपया का एक। Steel is an alloy but not a resistor. Steel is a very good conductor. हाँ, झटका मार देगा आपको। तो लेकिन ये सब मेटल के बने, मेटल तो वो करेगा ना, एलॉय है ना, प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है ना। ये अब यहाँ पे लिखा था ना टेम्परेचर, तो एलॉय ऐसे थोड़ी बनता है। एलॉय बनाने के लिए टेम्परेचर लगाना पड़ता है, उस टेम्परेचर में वो प्रॉपर्टी खो देता है, वो कंडक्शन बनेगा। See, the conductions happen due to what? Due to free electrons. So certain structures are formed in which the free electrons must have gone away. Therefore, you don't conduct. ठीक है? मेरा क्वेश्चन, जब हम ये कंबाइन करते हैं टुडे, do they reform at an atomic level, यानी कि इलेक्ट्रॉन? Alloys are not chemical combination. Please remember, alloy is a mixture. Yeah, solid mixture. 9 में पढ़ा था आपने. Alloy is not a compound. But once you form alloy, you will show different behavior. That is what they are showing. In fact, there are also some more things like, like there are some elements like say germanium and silicon. Their resistivity is midway, so they are used for making semiconductors. They are neither good conductors nor good resistors. They are semiconductors, germanium and silicon. So if you see like this, metals the resistivity is down, they are good conductors. Then comes metalloid, resistivity is midway, so they are semiconductors.
Then comes non-metals, resistivity is very high, so they become insulators. But here what we use resistors are made up of, because you cannot use a non-metal to make a resistor, we make resistors out of alloys. Now one of the beautiful example, this is your electric iron with which you are ironing your clothes, ठीक है ना? Inside this iron, what is the mechanism? Two wires are coming, three wires are coming actually. One wire is with the body, which is known as the earth. Okay. Rest of the two wires come and actually they will be joining something which is a high resistor coil. One wire will be here, one wire will be here. As soon as you pass electricity, this particular coil will start getting heated up. Because it is not allowing electricity to pass through it. It is obstructing the flow of electricity, so a lot of collisions take place. So this item is known as heating element. This is there in every heating thing, right from geyser to soldering iron. This is known as heating element. Now what do you make this heating element out of? This is also made up of an alloy. And this alloy is very special, known as nichrome. You must have guessed by now. Nickel and chromium. Sir, G. कौन सा बेटा? What is G? Germanium. Germanium and silicons have their resistivity midway between, so they are used as semiconductors. यही आपको पढ़ाना था. तो आपको एक चीज आएगा यहाँ पे, that resistivity does not depend on shape, size, length, geometry से कुछ नहीं लेना देना. It's a nature of material and the temperature. Now pure metals have very low resistivity, so they are good conductors. However, when you make alloys out of pure metals, there are some alloys which have very high resistivity and become perfect choice for making resistors in the market. हम resistances जब बनाते हैं, इन्हीं के metal के wires से बनाते हैं. And heating elements also use the property of high resistivity. So nichrome as an alloy, once it becomes an alloy, its resistivity is very high. So we make the heating element, soldering iron. Inside there will be a heating element. Geyser will have a heating element. Your hot heaters in your room have a heating element. All toasters have a heating element. All those are made up of nichrome. Okay. Now another question that comes in CBSE is that in order to make this heating element, why did you only choose an alloy? There are two reasons for it. Number one, the resistivity is high. The resistivity is very high. Therefore, it will block the flow of current. And once you block the flow of current, electrons will start colliding with each other and heat will be generated. So, since the resistivity is high, they start heating up very quickly. Okay? And the next one, which is quite different in this chapter, is that they do not undergo oxidation. They do not undergo oxidation easily. Like pure metals. ठीक है? क्योंकि आप जब हीट हो जाता है, like for example the nichrome inside your electric iron with which you are ironing your clothes, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसका स्केल फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर वो पतरा गिरते गिरते उसकी लास्टिंग नहीं रहेगी ज्यादा देर तक. डू यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एनीथिंग व्हिच वी हीट अप, ऑक्सीडेशन मींस दैट विल बी लॉस. सो स्केलिंग विल टेक प्लेस. छोटे छोटे चमड़े गिरना शुरू हो जाएगा और गिरते गिरते, रस्ट नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इसमें स्केलिंग बोलते हैं हम. स्केल फॉर्मेशंस विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस and then slowly what will happen, your heating element will go bad and its life will be short. So this question does come in CBSE, that why are heating elements made out of alloys and not pure metal? There are two reasons. Heating elements are made up of alloys because the resistivity of alloy is quite high, making it a perfect choice to make a heating element. For example, nichrome, an alloy of nickel and chromium, is used to make the heating element of electric irons, soldering rods, geysers, toasters, ovens, whatever you think. And these alloys do not undergo oxidation easily like pure metals, thereby ensuring higher life. That means thereby ensuring a higher life. समझ में आ गया बच्चा? रेजिस्टिविटी की कहानी यहाँ पे खत्म होती है. सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? याद रखना, रेजिस्टेंस R is equal to rho L upon A. So if L is made as 1 meter and A is made as 1 meter square, then R is equal to rho.
resistivity is the resistance of that conductor. Resistivity of a material is the resistance of a rod made up of the same material which has a length of 1 meter and an area of 1 meter square. अगर ऐसा कुछ आप बना लिए हो, वो जो रेजिस्टेंस दिखाएगा उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. रेजिस्टिविटी हेल्प्स अस चूज अ मटेरियल in order to, if you are looking to make a resistor or if you are trying to make a good conductor. Pure metals have low, alloys have high. यहाँ पे रेजिस्टर की कहानी खत्म होती है. और यहाँ पे याद रखिएगा rho L upon A, if you increase the length, the resistance increases. So if you double the length, the resistance doubles. If you double the area, then the resistance becomes 1/4. ये भी याद रखिएगा, ठीक है. हाँ, रेजिस्टर्स और रेसिस्टर का डिफरेंस क्या है? resistors will minimize the flow of current. Insulators will not at all allow at all. Resistor is something like, वो होता है ना द्वारपाल, हाँ स्पीड ब्रेकर है, वो जाने नहीं देगा उतना, और जब जाने नहीं देगा तो खुद फाइटिंग कर रहा है ना, गर्म होता रहेगा. Resistors also heat up very quickly. ठीक है, आगे बढ़े. तो anyone else copying? नहीं, वहां पे हम हीटिंग एलिमेंट डालते हैं, रेजिस्टर नहीं बोलेंगे. रेजिस्टर होने से इसको छूने से करंट लग जाएगा. देखो आप दोनों टर्मिनल के वायर को लाके इसमें शॉर्ट कर रहे हो ना. अगर ये कंडक्टर होता तो आपका योर एमसीबी विल ट्रिप. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ब्रिंगिंग द टू वायर्स एंड यू आर कनेक्टिंग देम. सो इफ इट वाज अ रेजिस्टर, इट विल स्टिल अलाउ सम करंट टू गो. दिस इज हाई रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट. इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ करंट. इसीलिए गर्म होता है, बिकॉज दे आर सेइंग हमें जाना है, नहीं जा सकते हो, लड़ाई हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली तू मैं हो रही है, यहाँ पे गर्म हो गया. ठीक है, मिटाएं इसको बच्चा. ओके, चलिए अब नया चीज पढ़ते हैं. एक और नया दिन, नई चीज. क्या रे, क्वेश्चन पेपर दिया कि नहीं रे तेरे को? आंसर स्क्रिप्ट दिया कि नहीं? साहेब ना अभी भी बोल रहा है कि ग्रेड 9 को ही चेक करते हैं, हमारी चेक नहीं करते हैं. अच्छा, आज छुट्टी थी, पहले बोला करो ना, तो सुबह क्लास कर सकते थे, आराम कर सकते थे शाम को. चलिए, सो फटाफट एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. जो फॉर्मूला अब तक हमने पढ़ लिया है, क्योंकि उनकी अभी बड़ी जरूरत होगी. नंबर 1, वोल्टेज कैसा होता था? वर्क डन अपॉन चार्ज. नंबर 2, करंट होता था चार्ज अपॉन टाइम. नंबर 3, V अपॉन I इज इक्वल टू R. नंबर 4, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. अब तक यही पढ़ा है. और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लो इंटरनल रेजिस्टेंस, V by I इक्वल टू R. तो यहाँ से V इक्वल टू IR भी कर सकते हैं, V by R इक्वल टू I भी कर सकते हैं. रेजिस्टेंस में इनको 1 कर दे तो हमें रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन मिल जाता है. तो आइए, so time has come to introduce our fellow resistance more nicely now. So a resistance in a circuit is denoted in this manner. स्पीड ब्रेकर आ गया, मतलब जा नहीं पाओगे, इसको हम रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं. इसकी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है. ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस. एक और चीज हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस? इन ओल्ड डेज, नाउअडेज तो तुम लोग सब रिमोट से चलाते हो. द रेडियो का जो वॉल्यूम बटन होता है ना, द वॉल्यूम बटन इज ऑलवेज नोन एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस. इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में पोटेंशियोमीटर. ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं. रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया और यहाँ पे एक वायर दिखा देते हैं, एरो. मतलब ये रेजिस्टर फिक्स नहीं है, ये वैरी करता है. इसका लैब का नाम है रियोस्टैट. इन लैब वी कॉल इट एज रियोस्टैट, एंड रियोस्टैट सिंबल इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे. And then there is a jockey point out here, और ऐसे रहता है. Means it tries to show, rheostat means adjustable resistance. आप समझ रहे हो? So this will be 1 point wire का, and this is your point that you are taking. अब इसको तुम slide करो, जितना ज्यादा ले जा रहे हो उतना R is increasing in this side. Have you understood this figure? अगर हम इसको यहाँ तक लाके यहाँ पे contact कर देंगे, then there is no resistance. You are straight away bypassing. एंड अगर यहां ले जाएंगे तो फुल रेजिस्टेंस, फिर यहां से निकलोगे. यही है, दिस इज नथिंग बट योर, दिस इन योर एपरेटस इज योर वॉल्यूम बटन. वॉल्यूम का बटन आपने देखा है ना,
तो अगर आप रेजिस्टेंस व्हेन यू लोअर डाउन यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, उल्टा करके बनाया है, इसलिए करंट घट जाता है, वॉल्यूम गिर जाता है। ये दोनों सेम है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। हाँ हाँ, लैब में जब आप वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे हमेशा ऐसे लगाएंगे, रियोस्टेट है, ठीक है, दिस इज नोन एज रियोस्टेट। समझ में आ गया? मिटा दो इनको। एनी क्वेरी सो फार? नो क्वेरीज? फाइन। क्या हो गया? दर्शिका भी गायब, जानवी भी गायब, अभी भी तो थे दोनों। पावर कट नहीं, दोनों एक सोसाइटी में थोड़ी रहते हैं, दोनों अलग रहते हैं। वो लोग कहाँ पर है? और सब वो भी तो गुड़गांव में है। कैपिटल की बात ही कुछ आ रहा है भाई, पावर गई होगी, ठीक है, दोनों तो आए थे, आई सॉ। चले आगे आगे बढ़ते हैं। आइए अब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को सीखते हैं, क्यों रेजिस्टेंसेस कंबाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहां से सवाल पक्का प्री बोर्ड में धांसू सा सर्किट देगा तुमको, combination of resistances. So why do we combine resistance? We combine resistance because the resistances which are available in market, they may not be exactly to the value that you want, okay? So and they don't manufacture that way also. So your desired resistance can be obtained by combination of resistances. Now how many ways can we combine resistance? So in electricity I had told you in the initial part when we were talking about voltmeter and ammeter, there are two modes of combination. One is known as series and the other is known as parallel. टाइम आ गया इनको अभी डीप में समझने का। सीरीज का मतलब होता है रिंगा रिंगा रोजेस, ये लिख मत देना स्कूल में, ठीक है, रिंगा रिंगा रोजेस। सर्किट के अंदर हो। हाँ, रिंगा रिंगा रोजेस मतलब आपका पैटर्न ऐसा रहेगा, ये रिंगा रिंगा रोजेस जैसे खेलते थे ना बच्चे, रिंगा रिंगा रोजेस, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंसेस कैसे लगेंगे, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये हमारा nth रेजिस्टेंस। समझ में आया? R1, R2, R3 to Rn, ऑल आर लाइक रिंगा रिंगा पैटर्न, ठीक है, समझ में आया? सीरीज। पैरेलल का मतलब होता है, चिल्ड्रन go to assembly in a line। तो बच्चे असेंबली में कैसे जाते हैं? लाइन में जरा देखो तो बच्चे ऐसे जाते हैं। ये पहला बच्चा, इसके पीछे वाला बच्चा क्या करता है, अपना हाथ इसके शोल्डर में दे देता है, फिर एकदम किंडरगार्टन वाले ये अपना हाथ इसके शोल्डर में दे देता है, ऐसे ऐसे पकड़ के जाते हैं ना किंडरगार्टन बच्चे, ये बिल्कुल वैसे हैं। तो कैसा रहेगा, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस, और सब अपना हाथ ऐसे ज्वाइन करके ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो तो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? सीरीज मतलब रिंगा रिंगा, पैरेलल। सबसे अच्छी बात ये है कि इफ यू लुक एट सीरीज कॉम्बिनेशन, then the right hand of the first one and the left hand of the last one are the open terminals, वहीं पे कनेक्शन होगा। और यहां अगर आप देखो सबके राइट हैंड मिलके एक बनता है, सबके लेफ्ट हैंड मिलके एक बनता है, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशंस में हम देखेंगे, हमारी अभी ये ख्वाहिश रहेगी, दैट विल बी वन ऑफ आवर क्वेस्ट। आवर क्वेस्ट विल बी दैट व्हेन यू मेड ऑल दिस तामझाम सर, can you actually make it a little bit simple for me? Can you say finally after doing all this whatever jing bang you have done, what is the equivalent resistance of this network? Are you getting it? We actually had 5 children who were pulling hand to hand together, and we replaced all the 5 and brought one sumo wrestler. So these 5 children are equivalent to Yokonaki Nikochuka sumo wrestler. So that we will see what is the equivalent. 5 children are equal to Yokonaki sumo wrestler. So similarly you will also like to say, sir, in this combination also all this tamjham leads to what? Can you tell me? So we should get a R equivalent here also. This is the R equivalent for a parallel network. This is the R equivalent for a series network. ये derivation आपको पूछ सकता है प्री बोर्ड तक, यूनिट टेस्ट तक, एग्जाम में पूछते नहीं देखा, पूछ लिए तो पूछ लिया। आइए उसको देखेंगे अभी, ठीक है। R equivalent in series and R equivalent in parallel, and that is very much needed. आइए
Let's first see the equivalent resistance are equivalent when you are in series. So let us first make a network first. Let's say we have one resistor, we have two resistors, and dot 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 we have n number of resistors, okay, and we have connected them across a particular cell. Did you understand? All right. So this is my resistor R1, this is my resistor R2, and so on Rn. N number of resistors of different value. My dilo tamanna is that how can I bring one resistance and make an equivalent circuit of this. Same circuit I want to make, but with one resistance R equivalent. What is it equal to? Right? That is my dilo tamanna. So let's say the voltage here is how much? V. V is the voltage. So in series voltage always gets divided, current remains constant, right? अगर हम यहाँ पे voltmeters डालेंगे, let's say the voltage drop here is equal to V1, the voltage drop here is V2, and here the voltage drop is Vn. In such a way we say that V ultimately is the sum of V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 plus Vn. Have you understood this? Always remember, voltage gets distributed in series. That is one of the reason that you never connect your voltmeter in series, because तब तो वो measure ही नहीं करेगा. Means if we would have connected a voltmeter here individually, this voltmeter would have shown a value V1. If connect another voltmeter here, it will show V2, right? Connect another voltmeter here, it will show a value V3, not V3, Vn. Okay, Vn. नहीं, घटने की बात वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर ना. हमारे यहाँ से हमारे यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारी है सरला मौसी. सरला मौसी ने 200 रोटी बनाए, तो 200 रोटी थोड़ी ये बात है 20 कोई 10 खाएगा, कोई 15 खाएगा, कोई 24, कोई आपकी तरह होगा आई डोंट लाइक रोटी, एक खाएगा, कोई ज्यादा खाएगा, लेकिन जितना खाया उनको जोड़ने से सरला मौसी की रोटी होनी चाहिए. समझ में आया? लेकिन सीरीज में हम जानते हैं करंट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो सीरीज में करंट जो है सेम करंट फ्लो करेगा. मतलब यहाँ पे अगर आई करंट है सर्किट का, तो यहाँ से भी आई गुजरेगा, यहाँ से भी आई गुजरेगा, क्योंकि ये तो वोल्टमीटर ऐसे भी नहीं जाएगा इस तरफ. यहाँ से भी आई गुजरेगा, यहाँ से भी आई गुजरेगा, यहाँ से भी आई गुजरेगा. तो इस चीज को भी आई ये लिख लेते हैं, और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं. हम सीरीज की बात कर रहे हैं. करंट दिस नंबर 1, ये दो आप याद रखोगे, आप डिराइव कर दोगे. करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट रिमेन्स सेम, है ना, सेम, बिकॉज करंट does not get distributed in सीरीज नेटवर्क. याद रखिएगा, करंट सीरीज नेटवर्क में ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको भूल नहीं सकते, एक ये इंपॉर्टेंट और एक ये इंपॉर्टेंट, इन दोनों को याद रखिएगा. करंट डज नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका मतलब है कि अगर मैं यहां काट के एक एमीटर लगा के रख दूं, एमीटर ए, तो ये मुझे क्या रीडिंग देगा? ये मुझे आई रीडिंग देगा, सर्किट का करंट का रीडिंग देगा. दिस इज माय एमीटर, दिस इज माय एमीटर. और फिर आप बोलोगे सर एमीटर को यहां लगाओ, तो मैं बोलूंगा यू भूतनी का, आई हैव टोल्ड यू ना दैट द करंट रिमेन्स सेम वेदर यू कनेक्ट हियर हियर हियर. एमीटर को जहां दिल करे वहां लगाओ. हाँ बोलो. जब करंट जाता है तो जब ये रेजिस्टेंस तक आता है, तो वो वही स्लो होता है कि जब उसके आगे जा सकता है, when it crosses the resistor, उसके आगे. At this applied voltage, after dealing with the entire resistance, the circuit converts it like one resistance, and this resistance will allow only a typical current to pass through the circuit. That current is only passing. It's same. ठीक है? स्पीड क्यों घटेगा यहाँ पे? स्पीड, करंट का कोई स्पीड नहीं. करंट इट्स अ कॉन्सेप्ट. सी द थिंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल गेट रिड्यूस्ड. द करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस.
तो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाटएवर करंट विल फ्लो थ्रू हियर इट विल फ्लो थ्रू हियर, ठीक है। सो I इज इक्वल टू I, समझ? Can there be multiple circuits in a? Yes, not multiple. That I'll tell you. Hold on. That is the problem when you already study in school. Hold. ठीक है, चले आगे। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज का। आइए, अब रुको ना, तो यार YouTube थोड़ी है कि खींच देने से आगे की स्टोरी आ जाएगी, थोड़ा सब्र कर तो यार, ठीक है। आइए, सो मैं लिख सकता हूं V इन द सर्किट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट Vn। कैन आई राइट दिस? Apply Ohm's law to each and every resistor. So how do you say? I would say Ohm's law is V upon I is equal to R. If I try to apply for this one, Ohm's law, what will I write? I would write V1, okay. So what is the value of V? V is equal to IR. Do you agree? Yes. So V1 should be equal to I into R1. This should be equal to I into R2 dot I into Rn, considering that this is the value of V. After that it is pure algebra. Take I common and take R1 plus R2 plus dot plus Rn. Understood? And bring the I this side. V by I. ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है? V by I is equal to R1 plus R2 plus dot plus Rn. जब तक मैं खत्म नहीं करता हूं कोई सवाल नहीं पूछना, ठीक है। सो व्हाट इज V by I? V by I is overall the circuit's equivalent resistance, which is equal to R1 plus R2 plus dot plus Rn. This is the equivalent resistance for a series network, which is very easy and looks very simple for us. If you have three guys who are pulling together, the equivalent strength is the sum of the strength of all. Okay, this is very easy. It comes very easy. What is the practical importance of this? Let's say the practical importance is we are making a project, okay, and in our project we need 200 ohms resistor. We don't have 200 ohms, market भी बंद है. However, we have 100 ohms into say 10 numbers of resistors है हमारे घर पे. So what do? You take 100 ohm के दो resistors लगा दो, बस. This is 100 ohms and this is also 100 ohms. The circuit can be conceptualized to be one single resistor of 200 ohms. Your job is done. ठीक है? So in series, resistances add up, and this is the equivalent resistance for a series network. So what all you should do? Series is a ringer roses type of combination where all the loads are actually joined this way. ठीक है? अब मान लो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग कहाँ गए? हम यूएस में गए, कुछ दिन रह के आते वक्त इंडियन है ना, तो थोड़ा सा बैग में कुछ ना कुछ तो पिल्फर करके लाएंगे। 2 बल्ब लेके आ गए यूएस से, ठीक है। 2 बल्ब चोरी करके लेके आ गए। ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है, ठीक है ना। ये यूएस के बल्ब जो है ना 110 वोल्ट में जलते हैं, ठीक है। इनको जैसे ही वी विल कनेक्ट इन आवर हाउस, बड़ाम करके उड़ जाएगा, बिकॉज आवर वोल्टेज इज 220 ऑनवर्ड्स। तो लेकिन हमारे पास तो हमने फिजिक्स पढ़ा है, हमें इन बल्बों को जलाना है, तो हम इन बल्बों को कैसे जलाते हैं? दोनों बल्बों को सीरीज में लगा दो और ऐसा करके प्लग में डाल दो, तो यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है, हर एक को 110 आना शुरू, प्रोवाइडेड दे आर एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड ऑल। बढ़िया ग्लो करेगा हमारे बल्ब। समझ में आया? तो इसका और अच्छा क्या देखें? लेट्स ट्राई टू सी सम मोर यूजफुल थिंग्स ऑफ इट। फिजिक्स जब तक, मैंने बोला ना, जब तक मैं खत्म नहीं करूं तब तक कोई सवाल नहीं। इसका यूज होना है हमें और अच्छा। यहाँ पे मिटा हुआ भी, कैन आई रब दिस वन चिल्ड्रन? अब देखो इसका यूज कहाँ पे है, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिकल तो करते नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? सोच लो। अब आने वाली है बढ़िया सा फेस्टिव सीजन आने वाला है, ठीक है। अब आने वाला है आपका फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन आते ही आप घरों में रंगारंग लाइटें लगाते हैं। दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया, जिसको जहां लगाना है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले जमाने में हमारे टाइम पे कैसे लाइटें मिलती थी, तो मान लो हमारे पास 6 वोल्ट के बल्ब्स हैं, और ये बल्ब्स हमने कहां से लाए? ये टॉर्च के बल्ब्स हैं। 6 वोल्ट के बल्ब्स हमने ले लिए, ठीक है। और 6 वोल्ट के हम कितने हैं? 6 वोल्ट के
हमारे पास सप्लाई आ रहा है 240 वोल्ट्स का सप्लाई आ रहा है घर पे, ठीक है, और हमें 6 वोल्ट के बल्ब जलाने हैं। तो हमने 240 को पहले 6 से डिवाइड किया तो हमें मिला क्या, 40 बल्ब आते हैं। तो 40 बल्ब हमने खरीद लिए। खरीदने के बाद इन 40 बल्बों को हमने ऐसे डॉट 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 करके, ये 40वां बल्ब है हमारा, समझ गए ना, 1 2, ये 40वां बल्ब, और यहां से दोनों को लेके हमने कनेक्ट कर दिया, कहां पे, मेंस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सारे बल्ब जल गए। ये होता था हमारे बचपन के प्रोजेक्ट्स। लेकिन हमारे बचपन के प्रोजेक्ट में एक और प्रॉब्लम था, हमारे माँ बाप तो उतने पैसे देंगे नहीं और बल्बों की क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं थी। देखो कैसे सीखे हैं हम लोग। तो क्या होगा, रात को जलते जलते एक बल्ब ना फटाक से फ्यूज हो जाएगा, होगा ना, ब्लो ऑफ होगा। तो मान लो ये बल्ब हमारा ब्लो हो गया, दिस बल्ब ब्लो हो गया, हो गया है, गर्म है, क्वालिटी ठीक नहीं है यार, बल्ब भी तो हीटिंग चीज ही है, बल्ब ब्लो 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 ऑफ हो गया, फ्यूज हो गया ये बल्ब। अरे यार तू कहानी पे मन देना, अच्छा क्वालिटी नहीं है, जान ले ले उस दुकान वाले की जिसने बेचा था। तो ये फ्यूज हो गया। फ्यूज होते ही क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा ओपन सर्किट हो गया। नाउ डू यू नो द प्रॉब्लम, एक भी बल्ब नहीं जलेगा। दिस वाज द प्रॉब्लम इन सीरीज। पर हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी ना बिरादरी में, देखो उनका घर अंधेरा होकर बैठा है। तो हमने यहाँ पे फिजिक्स लगाना शुरू किया। तो देखो हमने कैसे सीखा, हम इस बल्ब को निकाल के इस वायर को शॉर्ट कर देते थे, शॉर्ट कर दिया, साथ साथ सब बल्ब जलना शुरू हो गया। बट लिटिल डिड जयदीप दास नो व्हेन एट दैट एज, से दिस इज ग्रेड 3 4 5 के प्रोजेक्ट्स है मेरे, लिटिल डिड ही नो that he is now distributing 240 volts across 39 bulbs and each bulb is now bearing 6.1 volt 15। ये 6 रोटी खा सकता है। अब हर कोई कितना रोटी खा रहा है, 6.15, ठीक है। अब क्वालिटी एक बल्ब का थोड़ी खराब है, थोड़े दिन बाद और 2 बल्ब बर्बाद हो गए, ठीक है। ऐसे करते करते, पर हम तो सोचते थे हम 30 मार खा हैं, तो हम ये शॉर्ट करते जा रहे हैं वायर को, और शॉर्ट करते करते हम आ गए अभी 30 बल्ब में आ गए और 240 वोल्ट है। तो ठीक है, करके देखते हैं। 240 को हमने 30 से डिवाइड किया। अब हर एक बल्ब पे कितना आ रहा है, 8 वोल्ट्स आ रहा है। तो 3 इडियट के लैंग्वेज में मिस्टर राजीव रस्तोगी, बिग रीजन टू वरी। अगर मैं एक और 0 घटा दूं तो ये आपके फादर का 1 महीने का इनकम है। अब क्या हुआ, जैसे ही कनेक्ट किया ना, फटाक से सब उड़ गया एक साथ में, क्योंकि हर बच्चा सिर्फ 6। देखो प्रॉब्लम वाज व्हाट, वी डिडंट हैव बजट बट वी लर्नड इट द हार्ड वे। उस दिन लाइफ में एक चीज और सीखने को मिला, सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज, ये जो तुम्हें मैंने लिखाया ना, इसको मैंने कैसे सीखा पता है, मेरे आंखों के सामने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को तबाह होते हुए मैंने सीखा। सारे लाइट एक साथ उड़ गए, और ये लाइटों को लाने के लिए कितने क्लास टेस्ट में हाईएस्ट मार्क लाया, तब जाके पापा या मम्मी पैसे देंगे 40 बल्ब खरीदने के लिए। एक एक बल्ब 80 या 1 पैसे का होता था, 1 रुपए का। 40 रुपीज के लिए वॉट एवर पापर आई बेलोड, एंड बाई 4 hours ऑफ द दिवालीज इवनिंग मेरा घर पूरा अंधेरा। एंड देन माई फादर स्टार्ट सेइंग, इसलिए मैं कहता हूं दिया लगाना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। देखो एक तो हम सीख रहे हैं लेकिन कोई हम पे भरोसा ही नहीं करता है। पर आजकल के जो वायर्स आप देखते हो ना लाइट्स में, उनमें अलग अलग स्ट्रैंड्स रहते हैं, 1-2 फ्यूज भी हो गया, तो उस टेक्निक को भी हम देखेंगे। तो डिड यू अंडरस्टैंड, हमने इससे सीख लिया। उस दिन से याद है, वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ में आया। हमारे पास 12 वोल्ट का टाटा स्काई का अडेप्टर है, हमारा राउटर 6 वोल्ट पे चलता है। हम क्या करें, 2 राउटर चला दो, 6 इसको जा रहा है, 6 इसको जा रहा है, खुशकिस्मती से चलेगा। क्लियर। सीरीज कनेक्शन में और कुछ पूछना है? नाउ ओवर टू यू फॉर एनी कनेक्शन ओनली ऑन सीरीज, नॉट ऑन पैरेलल। डिड यू अंडरस्टैंड सीरीज कनेक्शन ऑफ सीरीज में रेजिस्टर्स एड अप हो जाते हैं, ओवरऑल रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसमें मैंने क्या, तो आप जैसे बोलते गंदा क्वालिटी अगर बल्ब है तो इसमें गंदा क्या हो सकता है, एलिमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। व्हाट इज अ बल्ब, बल्ब हैज गॉट समथिंग कॉल्ड अ फिलामेंट व्हिच बर्न्स इफ द बर्निंग इज नॉट गुड। बस तुम्हारे पैंट का इलास्टिक अगर अच्छा नहीं है तो सरेआम तुम्हारी पैंट उतर जाएगी ना कुछ दिनों बाद, तो वहां पे वही हाल हो रही है। समझ में आया। और ये पूछ रहे सर खराब पैंट का मतलब क्या है, यार इलास्टिक खराब होगा और क्या होगा, ये समझ में आया। चलिए अभी हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो मिटाते हैं ये कहानी। देखो
आर इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्यू मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट सीरीज में कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है भाई साहब, सिर्फ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। करंट क्या है, देखो करंट है क्या, करंट है बहता पानी। क्या सीरीज में उसे कहीं और रास्ता मिला? नहीं मिला, जैसा मिल रहा है वैसा जा रहा है। करंट इज लाइक, वो जो हॉस्टल में एक लड़का होता है ना, किसी का भी रूम खुला, यही क्या कर रहे हो, करंट वैसा है। कोई रूम खुला नहीं है, वो सीधा अपना रूम जाता है। ठीक है, बस और क्या। तुम लोग यार पढ़ते लिखते हो नहीं, खाली कहानी सुनते हो, मनोहर कहानियां। ठीक है, आ जाओ। तो पांचवा फॉर्मूला डाल दे भाई साहब, टाइम हो गया। पांचवा फॉर्मूला डालने का, पांचवा फॉर्मूला होता है आर ई क्यू सीरीज में। हाँ, आर ई क्यू सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने हैं Rn तक डाल लो भैया, तुम्हारी मर्जी। समझ में आ गया? आइए अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन द कहानी। पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल कनेक्शन की कहानी देखते हैं। सीरीज में एक चीज पता चला ना, सीरीज में कैसा है, एक बल्ब अगर खराब हो गया, सारे बल्ब, कुछ नहीं जलेगा। ठीक है, पेलोड की बात नहीं है, सर्किट कट गया, सिंपल। मेरे घर में पानी का पाइप घुस के तुम्हारे घर में घुसता है, तो मैं अगर वाल्व बंद कर दूं, तुम्हें पानी मिलेगा, तुम्हारे आगे वाले को मिलेगा। बस फालतू दिया बात नहीं पूछना है। सीरीज में वैसा ही हो जाता है, अगर एक बल्ब फूट गया ना, तो उसके आगे किसी को भी और नहीं मिलेगा। आइए अब पैरेलल कनेक्शन को देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टिपिकली हम आपको दो रेजिस्टर से दिखाते हैं पहले। ठीक है, हम ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप दो रजिस्टर से देखोगे तो आपको आसान है। चलो तीन रजिस्टर, चलो n रजिस्टर ले लो यार, तुम भी क्या याद करोगे। मान लो n रजिस्टर्स है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू R1, इसकी R2, इसकी R3, इसकी Rn, और इनको ना बड़ा स्टाइलिश वे में हमने कनेक्ट कर दिया है सबको। ठीक है, और यहां से निकाल लिया एक पगडंडी, और यहां से एक पगडंडी। भाई साहब समझ में आ रहा है? और इस चीज को अब हम एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। जी भाई साहब, कनेक्ट कर दिया। ये सेल जो है ना, ये V दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, समझ में आया? अब कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। नंबर 1, इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, यहां अगर V है तो यहां पे भी अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊं, वो भी V रीड करेगा। यहां पे वोल्ट मीटर लगाओ तो भी V रीड करेगा, यहां पे वोल्ट मीटर लगाओ तो भी V रीड करेगा। बिल्कुल उल्टी कहानी हो गई अभी, समझ रहे हो? सीरीज में लेकिन अलग अलग वोल्टेज आ रहा था, यहाँ पे वोल्टेज सबकी कांस्टेंट है। और यहाँ भी वोल्ट मीटर लगा लो मन की तसल्ली के लिए, पैसा बहुत है हमारे पापा के पास, तो हमने लगा ली सारे, सब में V दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इन पैरेलल सर्किट, पॉइंट नंबर 2, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे लफड़ा आ गया हमें। अब करंट क्या है, करंट तो है वही है ना, मुसाफिर हो यारो, चला गया यहाँ पे। यहाँ से कितना करंट निकला, I निकला। यहाँ से कितना निकला, I निकला। यहाँ से कितना निकला, I निकला। ओहो भाई साहब, अब तो I को अलग अलग रास्ते हैं। मैं यहां से जाऊं I1, मैं यहां से जाऊं I2, मैं यहां से जाऊं तो I3, मैं यहां से जाऊं तो I4। बात समझ में आ रहा है? फिर हर एक I1 के लिए ये तो सीरीज नेटवर्क हुआ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पीटूंगा पकड़ के। सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यहां से यहां तक तो सीरीज है ना। तो यहां अगर I1 है तो यहां भी I1, यहां भी I2, यहां भी I3, और यहां भी I4। और शोले के ये दोस्ती गाना जैसा बाइक और वो एक्सेसरी दोनों सब मिलके फिर से I बन गया, यानी कि बंदर का भाई। समझ में आ रहा है? यानी कि हमारे इस सर्किट में I एक्चुअली गॉट स्प्रेड अप टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN। इसको I4 नहीं लिख के IN लिख लेते हैं। ठीक है, IN में स्प्लिट अप हो गया। समझ में आया? सर थोड़ा सा एमीटर की कहानी भी दिखा दो। ले कर ले बात, पैसे तो हमारे पास बहुत है। ये एमीटर है, ये एमीटर I रीडिंग दिखाएगा। यहां अगर एमीटर लगाऊं तो IN रीडिंग दिखाएगा, यहां I3 दिखाएगा, यहां
2 दिखाएगा, यहाँ I1, और फिर अगर यहाँ एक और एमीटर लगा दो तो I दिखाएगा। अब समझ में आया? लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी दिवाली वाली कनेक्शन यहाँ भी देख लेते हैं, बचपन वाली। फंडिंग नहीं थी ना, वरना ये सर्किट बेटर है। मान लो ये बल्ब खराब हो गया, फूट गया ये बल्ब, तो करंट आके इस बल्ब को नहीं है ना, पर इनको तो करंट मिल रहा है, घर हमारा रोशन रहेगा। तो यही लगा देते ना। अब पैसे नहीं थे ना, पैसे नहीं थे ना, हमें और चमाटे मारो, यही लगा देते। इसका फंडिंग कौन करेगा? हमारे बापू तो इतने पैसे नहीं देंगे हमें। समझ में आ रहा है? तभी भी 40 ना बहुत। नहीं, तभी 40 रुपए नहीं। यू डिडंट आस्क वन थिंग, बल्ब्स की वोल्टेज कितने की थी जो हमने खरीदी थी? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट कनेक्ट तो करेंगे किसमें? 240 में ना, फूट ना जाए इसमें। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कैसा बल्ब लगाना चाहिए था? हमारे घरों में जो बल्ब है 240 240, उस जमाने में एक 240 वोल्ट का बल्ब 15 रुपए का आता था। 40 बल्ब मतलब 15 4 जा 60, 600 रुपए। यार वो तो दहेज में भी ना मांग पाऊं। समझा नहीं। मेरे पास वो बल्ब्स कितने के थे? 6 वोल्ट के। क्या मैं 6 वोल्ट के बल्ब यहाँ लगा पाऊंगा? यहाँ सप्लाई तो कर रहा हूँ 220 वोल्ट, फूट ना जाएगा हर बल्ब। क्योंकि करंट लेकिन सर अगर आप 240 का लगाओगे तो वो और 240 का लगाने से बिल्कुल जलेगा, नो प्रॉब्लम। 240 के बल्ब का प्रोजेक्ट का पैसा नहीं था मेरे पास। 240 रुपीज का बल्ब, 240 वोल्ट का बल्ब मतलब घर का बल्ब, दैट कॉस्ट 15 रुपीज पर बल्ब। And if you want to make that lurry to decorate your balcony, you need 40 bulbs. तो सर लेकिन वो अपना ये भी नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा? बिल्कुल हैंडल करेगा। सर वो सिर्फ 240 वोल्ट ये सर, अगर आप पूरा 240 हाँ, सब हर एक को 240 तो चाहिए। तुम्हारे घर पे कैसे वायरिंग हो रहा है? अरे सर, The circuit is supplying 240 volts. Each load needs only, देखो the circuit is supplying V volt. Each needs only V volt. क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। सबको V ही चाहिए ना, ये सब जुड़ के थोड़ी NV हो गए हैं, ऐसा तो नहीं ना। उसका डाउट है कि 4 जगह में बीच है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। Voltage is not getting, current is getting distributed. Voltage is same. Just think one thing, तुम्हारे घर पे क्या वोल्टेज आ रहा है? 240। तुम्हारे बाथरूम में क्या वोल्टेज है? तुम्हारी बालकनी में क्या वोल्टेज है? ऐसा है क्या कि बाथरूम के वायर को छूने से शॉक नहीं खाऊंगा? या फिर नहीं, मेरी बात तो सुन लो पूरी, बालकनी में पकड़ने से भी शॉक खाओगे? सब में सेम वोल्टेज आ रहा है ना, तो फिर प्रॉब्लम है। वो सब ऐड अप होके वो सीरीज में होएगा, वो सीरीज में होगा, इसमें नहीं होएगा ना। ठीक है, समझ में आया? चलो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं अभी। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम शुरू करेंगे I से। करंट जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस कितना IN। लगाओ फिर यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V अपॉन I इज इक्वल टू R, यानी I की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? V बाई R हो गई। यही ओम्स लॉ है ना, I की वैल्यू V बाई R हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने I रखा, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाई R1। V तो कांस्टेंट है सबके लिए। The current I1 can be found by voltage through resistor divided by the resistor. Voltage is V, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? V by R2, इसके लिए V by R3 प्लस डॉट 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 V by RN। भाई साहब समझ में आ रहा है अब कुछ? अब V को कॉमन ले लो, I इज इक्वल टू V ने कॉमन ले ले, तो I is equal to V by I, sorry। बस सीबीएसई बच्चा छाप लिया फॉर्मूला, और क्या चाहिए भाई? नंबर आ गए बस, और कितने करने हैं, है ना? तो I बाई V हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। और I बाई V क्या है? इट इज नथिंग बट 1 अपॉन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट। V बाई I अगर R है तो I बाई V 1 बाई R हो गया। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डॉट 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 1 बाई RN। कोई मुंह नहीं खोलेगा जब तक मैं सरेंडर नहीं करता हूं, पहले रुक जाओ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, वी आर हैविंग ओनली 2 रेजिस्टेंसेस एंड वी हैव कनेक्टेड देम इन पैरेलल, राइट? इसको हमने पैरेलल पे कनेक्ट कर दिया है और ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये V है
एंड लेट्स से दिस इज R1 एंड दिस इज R2। दो रेजिस्टेंस के लिए, और हमारे सर्किट में यहाँ I करंट जा रहा है, यहाँ पे I आ रहा है अंदर, लेकिन जाके ये I1 हो रहा है, ये I2 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फॉर टू रेजिस्टेंसेस हो जाता है R1 R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये R1 R2 हो गया, R1 प्लस R2, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2। मतलब रेसिप्रोकल को अगर उठा दे दो रेजिस्टेंसेस के लिए, वेट अभी भी नहीं, ओके समझ में आया। R1 और R2 दोनों को लिया, दोनों का एलसीएम कितना होगा R1, मतलब बेसिकली यहां से बाकियों को हटाने से क्या होगा 1 by R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2, इधर आ जाएगा R2 और इधर आ जाएगा R1, और फिर इसको पलटा दिया R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है समझ में आया। इसका यूज कहां है जरा देखो, हमारे पास घर में एक प्रोजेक्ट करने के लिए, सो पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट इज लाइक दिस, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। V जा रहा है, I करंट आ रहा है, और ये है R इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला है 1 by R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रहता है, 1 by R का रहता है, इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस डॉट 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 1 by Rn, ठीक है। रुक जाओ, क्या है यही पे डाउट है, R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस R2 नहीं हो सकता। That is series connection, beta. How can you combine both? You are learning parallel now. ये मोड तो देखो ना, ये चिल्ड्रन गो टू असेंबली में नहीं है, ऐसे ऐसे हर एक के पीठ में हाथ देके नहीं है। ये पूरा यार रामायण पढ़ाने के बाद बोलते हो यार भीम ने रावण को कब मारा, वो महाभारत है यार, ठीक है 1 by R1, समझ में आया। अब इसका यूज देखते हैं। हमें एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हमें चाहिए 50 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए, बाजार बंद है और हमारे घर में 100 ओम्स के दो रेजिस्टर है, 100 ओम्स के दो रेजिस्टर हैं, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल पे कनेक्ट कर दिया। वैल्यू कितना होगा जरा देखो, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, 50 हो गया। 100 इंटू 100, तुम लोग यार मैथ्स में बहुत कच्चे हो, और बैठ के ना सारा दिन डिस्कॉर्ड करते रहो। 100 प्लस 100 200 हो गया ना, काटना इसको, इससे से काट, 2 से 100 काट गया, 50 नहीं आ गया, 50 ओम बना दिया तुमने। कैसे, 200 ओम। अब तुमने पूरी स्टोरी देख ली। अब देखो 200 ओम को सीरीज में लगाओगे तो 200 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा, 200 ओम को पैरेलल में लगाओगे तो 50 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। So if you don't have resistances of your requirement, you can make them to your requirement using these two formulas. Have you understood? 1 ohm 1 ohm एक साथ जोड़ दो तो कितना हो गया 2 ohm। 1 ohm 1 ohm एक साथ जोड़ दो तो कितना हो गया 0.5 ohm पैरेलल में। अब तुम्हें जो दकियानूसी सवाल करना है कर सकते हो, मैं चुप, जो भी सवाल पूछना। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। रजिस्टर इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा हीट अपना हो सर। नहीं, रजिस्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा होटल ज्यादा रोटी दे रहा है, आपको खाने की काबिलियत नहीं है, आप तक रोटी आने में रुक रुक के आए, और जब रुकेगा तो गर्म होना शुरू हो जाएगा। हीट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टर नहीं लगाते, उसके लिए तो थर्मोस्टेटिंग करेंगे। हीट से कुछ, आप रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लो ना। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय व्हिच इट ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट रिड्यूसेस द करंट। मैं इतनी रोटी एक साथ नहीं खा सकता हूं, तो रेजिस्टर लगाओ सामने। वो आदमी ऐसे रोटी दे रहा है, मैं खा ही नहीं पा रहा हूं, मैं एक निवाला तोड़ के खाता हूं, अजबा की तरह धीरे धीरे एक साइड मुंह में रख के चबाऊंगा, तो मैं क्या करूं। रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ना सामने। कैसरोल रख दो भाई, उसमें रोटियां डालो तो रोटी गर्म नहीं हो जाता कैसरोल, वही हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा सब्जेक्ट को ना, देखो एक चीज है, बड़े हो रहे हो अभी, तुमसे कोई है, थोड़ा सा नॉलेज, परसिवरेंस, हार्डवर्क सब अपनी जगह। एक चीज रहता ना, यहां से कनेक्ट आता है, इश्क कहते हैं इसको। थोड़ा इश्क करो किसी एक सब्जेक्ट से, और जब तक ये लव डेवलप नहीं होगा ना, ये सारा कुछ तुम्हें लगेगा कि माँ बाप और टीचर तुम पे थोप रहे हैं। हमने कभी मोहब्बत से देखा ही नहीं इनको, बेगैरत, एहसान फरामोश दिखते हैं हमें ये सब।
मैंने तो इनसे प्यार किया था, इसलिए मुझे ये हमेशा माशूका जैसी दिखती है। आपको भी ये दिखेगा। आप मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, बेटा कहीं तो हमें करियर में एक्सीलेंस लेना है ना। या फिर सोच लो गाड़ी साफ करता हूं मैं बहुत अच्छा, तो गाड़ी साफ करो अच्छे से, क्योंकि कल से मैं गाड़ी साफ करूंगा अपार्टमेंट के, लेकिन अंडर एज हो, लेबर लॉ में पकड़े जाओगे। या अमेजोन का डिलीवरी वाला बन जाऊंगा, आते ही ना बड़ा मजा आता है, साहब ऐसे टिक, मैडम आपका ओटीपी बताइए, टिक, हाँ हो गया, थैंक यू मैडम, फीडबैक दे दीजिएगा, बस वो वाला बन जाओ फिर, उसके लिए भी अंडर एज हो, है ना। आर्यमान को देखो, इतना ही प्यार है कि वो मुझे हमेशा अलमारी दिखाता है, वो खुद गायब है, देखो उसकी कैमरा ऐसी सेटिंग है कि उसमें सिर्फ आप अलमीरा देख सकते हो, उसे नहीं देख सकते हो, है ना। आर्यमान पास में बैठ के कोई और भी पढ़ता है क्या आपके साथ, कि उसका चेहरा छुपा रहे हो, उसका या उसकी? अच्छा, नहीं ऐसा तो आदमी को कभी कभी होता है कि आदमी ऐसा छुपा क्यों देता है। ठीक है, चले अभी, अब ये सब से आपको क्या करेगा, आपकी लाइफ को कहां मुश्किल करेगा वो देखते हैं। तो आइए फॉर्मूला नंबर 6। असबा आप लोग मिटाओ बेटा, आपने लिख लिया तो मिटाओ, ऑल ऑफ यू, राइट, मिटा सकता हूं, चलिए मिटाते हैं। तो हमारे फॉर्मूला नंबर 6 को अभी शामिल कर देते हैं। लेट्स इंक्लूड फॉर्मूला नंबर 6। 11-12 फॉर्मूला आएंगे चैप्टर में भाई साहब, अभी तो 6 पे हो। ठीक है, आइए, इसमें लेकिन बहुत सारे सर्किट क्वेश्चंस आते हैं। ईश, आ जाओ। 6th फॉर्मूला, R equivalent in a parallel circuit is given by the formula 1 by R equivalent। एक्चुअली R equivalent तो होता नहीं है, 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 1 by Rn। ठीक है, अब यहां से आपको छोटे छोटे सर्किट्स देगा और बोलेगा कि आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। ये करते वक्त आपको खूब सरदर्द होगी, तब आप याद रखिएगा ये कुछ भी नहीं। आप में से कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर्स में जाएगा तो आपको एक सब्जेक्ट आएगा ECA, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। एक सब्जेक्ट होता है सारा साल, जो आप अब यहाँ 15 मिनट के लिए पढ़ोगे, उसमें सारा साल एक सब्जेक्ट है। उसमें बच्चों को 35 नंबर मिलने में काफी मुश्किल होती है। हाँ, तो इसलिए मत बोलो नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि इससे इश्क करो, अभी आप इसको प्यार करना शुरू करो, इसको अवॉइड मत करो। आइए कुछ सर्किट्स देखते हैं। जैसे एकदम सिंपल सर्किट, CBSE के अगर आप दामाद हो तो आपको सर्किट ऐसा दे देगा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कर दोगे, सीरीज में है तो तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी के साथ ही खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा और करते हैं। इतना भी नहीं, बच्चे की जान लोगे क्या। ऐसा सर्किट दे दिया, इसमें क्या है, ये दोनों सीरीज में है, इसको हम कहते हैं R1 और ये R2, ये R3, ये R4। सबसे पहले आप R1 और R2 का इक्विवेलेंट बनाइए। क्या बनाएंगे, R1 और R2 का इक्विवेलेंट बनाइए। सर बना दिया, सर बना दिया, R1 प्लस R2 हो गया, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया। चलो यहीं पे बनाते हैं तो और अच्छा, इसका इक्विवेलेंट बनाइए। ये दो सीरीज में है तो हमने एक बना दिया, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। नीचे दोनों भी सीरीज में है, वाह भाई वाह, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस डाल दो, इसकी वैल्यू है R3 प्लस R4। अब ये दोनों पैरेलल में है, अरे रुको ना भाई, व्हाट 1 बाई R यार, मस्त। ये दोनों पैरेलल में है, लेट्स से दिस इज RA, इसको नाम दिया, इसको RB नाम दिया। अब RA एंड RB पैरेलल में है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम फाइनल रेजिस्टेंस बना दे, फाइनल ये सबको हटा देते हैं और एक रेजिस्टर ले आते हैं, और वो रेजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, RA RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। सर कैसे किया आपने, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, चिड़िया उड़ गई सर आंखों के सामने से। चलो आओ, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास था
दो रेजिस्टेंस R1 और R2, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RA, जो कि होगा R1 प्लस R2। समझ में आया? फिर नीचे में थे दो रेजिस्टेंस, ये क्या थे? R3 और R4, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना RB, जो कि है R3 प्लस R4। समझ में आया? यानी कि अब हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि ऐसा है, इधर एक RA है, इधर एक RB है। अब RA और RB दोनों पैरेलल में है ना? ये दोनों पैरेलल में है अभी, ऐसा ही तो हमारा सर्किट था ना, ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो अपन लिख सकते हैं दैट द फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req इज 1 by RA, ठीक है, प्लस 1 by RB। और अगर आप रैशनल नंबर्स क्लास 8 में नहीं किए हैं और डिस्कॉर्डिंग किए हैं, जो कि आपने किया था, तो ये हो गया कितना? RB प्लस RA। समझ में आया? और अगर मैं अभी Req को लिखूं, ठीक है, Req को लिखूं तो ये क्या लिखूं? RA RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB। क्या उल्टा लिखा है? ठीक ही तो लिखा है। तुम जिसको सिलेबस में पढ़ रहे हो ना, हम इसको हमारी बदकिस्मती बोलो, गरीबी तो नहीं बोलूंगा, दैट इज अ शेम, आई वोंट से गरीबी, हमारी लोअर रीचेबिलिटी इकोनॉमिक कंडीशन से हम इसको सीखे हैं, इसलिए ये हमारे दिल पे फॉर्मूला है, जहन पे है, हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसको सिलेबस से नहीं पढ़ते हैं ना, ये तो वहां छपा हुआ है यार। क्योंकि इसको अचीव करने के लिए हाईएस्ट लाना पड़ता था, अर्जी डालनी पड़ती थी, पिछले दिवाली में डालेंगे तो अगले दिवाली में आएगा, तब तक शायद बच्चे का शौक ही कुछ और हो गया। बात समझ में आई? ऐसे आ सकता है, ऐसे बहुत सारे, ये तो कुछ भी नहीं। और भी अब आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए तो ऐसे प्रॉब्लम्स, हम ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत करेंगे जब हम सैंपल बुक करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे। यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड थिंक हाउ टू सिंप्लीफाई द सर्किट। कहीं ना कहीं आपको सीरीज दिखेगा, कहीं ना कहीं, जैसे आपको ना बड़ा ही बोर करके बनाएगा। देखो यही सर्किट आपको कैसे देगा पता है? ये तो वो हुआ कि अगर आपके साथ मदरली एटीट्यूड है तो ऐसे दिखाएगा। स्टेप मदरली वाला सर्किट भी देख लो, यही सर्किट स्टेप मदरली फॉर्मेट में, ठीक है। Cinderella, you can't go to the prince. You stay in the house and make all the food for everyone. ये देखते तुम्हारे होश उड़ गए। ये क्या है? तुमने कहा सर हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हो? हमने कहा भैया एक चीज देखो। सर क्या देखूं? सर R1 का लेफ्ट हैंड देखो। सर R1 का लेफ्ट हैंड। सर R3 का लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड। सर दोनों मिल गए। सर दोनों मिल गए। R1 का राइट हैंड, R2 का लेफ्ट हैंड, बिल्कुल ये बिल्कुल ये, और ये दोनों में। ये तो मगन सक्सेना था, ये सक्सेना मगन है, बस एक ही तो चीज है। सौतेली माँ के रूप में दिखाया आपको ताकि आपकी हालत थोड़ी सी खराब हो, और ये माँ का प्यार था। लेकिन आपको एग्जाम में माँ का प्यार नहीं आएगा, सौतेली माँ का प्यार ही आएगा। तो आपको देखने का नजरिया चाहिए, क्या ये वही चीज है? हाँ ये वही चीज है। अब इसके बाद यहाँ पे ले जाके कुछ और रेजिस्टेंसेस डाल दो, ऐसे एक रेजिस्टेंस ऐसे, फिर यहाँ पे एक और क्लब रेजिस्टेंस डाल दो, ऐसे करके। ये तो कुछ भी नहीं है यार, ऐसे करके। ये सब आपको आता है सीबीएसई में, बट आपको क्या करना चाहिए? आप इसको क्या करो, स्ट्रेच करो ऐसे। अच्छा ये तो सीरीज है। चक दे देखा है? दिव्या मेरी तरफ देखो, इसने अपना पांव बाएं की तरफ किया, ये शॉट दाएं की तरफ लेगी। ओ नहीं, इसने तो अपना स्टिक इसके, ये सीधी शॉट लेगी। हाँ तो ये सीधी शॉट लेगी, दोनों में सीरीज। तुम लोग तो जाके देखोगे वही मार्वल कॉमिक्स बेकार का, या फिर वो काले कौवे और काला दीवार वाला, क्या था वो, हैरी पॉटर। आई ओनली नो जेके रोलिंग, आई डोंट नो व्हाट्स पंचतंत्र, और आई डोंट नो व्हाट इज सिंदबाद द सेवर। समझ में आया भाई साहब? इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप बुक में इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। I can spend time with you to do numericals, but try and understand. Now, no numerical is hard. Only try to visualize the circuit, break the circuit. Where is the series? Where is the parallel, equivalent? Ultimately, सब टूट तार के एक जिक्सो पजल जैसा है। और ये अध्याय खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे
बेनिफिट ऑफ हैविंग ए सीरीज सर्किट शायद वही रहेगा, एंड बेनिफिट ऑफ हैविंग ऐसे ऐसे सर्किट्स आएंगे। ये देखो ऐसे बच्चा आपके लखमीर सिंह में ये सब टाइप के प्रॉब्लम्स, ये सब टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे आएंगे, ये कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ये हो गया हमारा, और इसके बाद डोमेस्टिक सर्किट आएगा, सीरीज और पैरेलल, एंड देन इलेक्ट्रिक पावर। ऑलमोस्ट हम दिल्ली घुस रहे हैं अभी, हाँ मतलब चैप्टर में, अभी पलवल के बाहर खड़े हैं, हरियाणा में घुसने वाले हैं अभी, ठीक है। आज रोकूंगा क्योंकि एक और क्लास है। हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर है, फिर सेफ्टी है तो सेफ्टी कौन देखता है, ठीक है बच्चों। सो विल कैच अप इन आवर नेक्स्ट क्लास, यहाँ तक पढ़ के आइए, इसके बाद हम थोड़े से प्रॉब्लम्स और करेंगे, एंड देन विल कम इन आवर हाउस डू वी यूज सीरीज और पैरेलल, व्हाई डू वी यूज दैट, एंड आफ्टर दैट वी विल सी इलेक्ट्रिक पावर पैरेलल है सब पैरेलल है, हमारा वोल्टेज सेम है ना हर पॉइंट पे, ठीक है। राइट, सो आई विल क्लोज द क्लास नाउ, थैंक यू एंड कैच यू ऑल अगेन ऑन Friday.